शुक्रिया 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 धर्म जी, शुक्रिया। Yes, Priyanka ma'am, you can start. Okay. Good evening, everyone. I, Dr. Priyanka Kulheri, on behalf of AIST College, welcome you all to the 14th session of our refresher course on Indian folk culture, where we delve into a topic of paramount importance, the marginalization of Indian folk culture and performance in Indian aesthetic discourses. This session marks a pivotal moment in our exploration of the rich tapestry of India's cultural heritage. Indian folk culture, with its vibrant traditions, diverse art forms, and deep rooted history, has long been an integral part of our nation's identity. However, despite its significance, it has often been relegated to the peripheries of India's aesthetic discussions and academic discourse. In this session, we aim to shed light on the challenges and issues faced by these invaluable traditions, exploring the reasons behind their marginalization. Through thought-provoking discussions and insightful perspectives, we will delve into the complexities of preserving, promoting, and integrating Indian folk culture into mainstream aesthetic discourses. This session is an opportunity to recognize the immense value of these traditions, appreciate their uniqueness, and discuss ways to ensure they receive the recognition and appreciation they truly deserve. We encourage active participation and engagement from all participants as we embark on this enlightening journey to understand, protect, and celebrate the treasure trove of Indian folk culture. Together, we can work towards a more inclusive and comprehensive understanding of our cultural heritage. Now, we have with us Dr. Dhruv Prakash, and I'll take this opportunity to say a few words about him before I hand over the virtual mic to him. Dr. Dhruv Prakash is a writer, cultural theorist, and an assistant professor of theatre and performance studies at the School of Arts and Aesthetics at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is the author of critically acclaimed book Cultural Labour: Conceptualizing the Folk Performance in India, which was published by Oxford University Press in 2019, and Body on the Barricades: Life, Art and Resistance in Contemporary India, which was published by Leftward in 2023. He has also published in various research journals, including Asian Theatre Journal, Performance Research, Theatre Research International, Economic and Political Weekly, and others. He was a recipient of the Dwight Conquer-Good Award from the Performance Studies International in 2013. He was a fellow at the South Asian Institute at Heidelberg University, Germany, and the Crash at Cambridge University, UK. His popular columns on art, culture, and politics frequently appear in Scroll, Wire, Outlook, and other media platforms. His opinions have also appeared in the BBC, New Arab, Print, and other popular podcasts in Hindi and English. His working project, Epical Subjects and the Questions of Cultural Justice in India, is an attempt to theorize cultural justice in India through the performance of epic and narrative traditions of the subaltern communities. Sir, we are really delighted and honored to have you with us. And now everyone is waiting to hear from you. So I'll request you to start your session with us. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka, and thank you so much, Sridharam ji, for giving me this opportunity. मुझे बुलाने के लिए आमंत्रित बुलाने के लिए और बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाह रहा था कि मैं भी ये कोर्स अटेंड करूं। मैं तो बीच बीच में निगोशिएट भी करना चाह रहा था श्रीधरम जी से कि फोकलोर पे है और मेरा फील्ड भी है, तो मैं अटेंडी बन जाता हूं, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं उस साइड में नहीं बैठ के इस साइड में बैठा हुआ हूं। लेकिन वही करेंगे कि हम बातचीत का ही थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि बातचीत ही हो। मुझे पता है कि आप सब लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मुझे बताने के लिए बहुत कुछ नया नहीं है और शायद बहुत कुछ तो एक है कि बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू हो, और कुछ कुछ जो सवाल है जो मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा, हम उसी को लेकर कुछ बात करेंगे। एंड आई होप दैट वी आर एबल टू ब्रीच सम कनेक्शंस एंड वी आर एबल टू मेक दोज
तो मेरा जो किताब था कल्चरल लेबर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द फोक परफॉर्मेंस इन इंडिया, उसी को रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो जो सवाल है जो आई थिंक दैट लाइक नो क्वेश्चन पर्टेन्स टू मेनी ऑफ अस, एंड द क्वेश्चन वाज दैट लाइक नो व्हाई फोक परफॉर्मेंसेज आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड इन लार्जर एस्थेटिक डिस्कोर्स। तो जब भी बात आती है कि जैसे अगर बात करेंगे, आप भरतनाट्यम की बात करें, आप कथक की बात करें, आप कथकली की बात करें, तो माना जाता है कि एक एक उसका एक रूपक है, एक एस्थेटिक्स फॉर्म्स है, उसका एक हाई स्टैंडर्ड है, उसमें स्किल्स की बातें हम कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट सम मोड्स ऑफ एस्थेटिक्स, सम मोड्स ऑफ लाइक कोनाइजरशिप, जिसमें रसा की बात होती है। लेकिन जब फोक परफॉर्मेंस की बात होती है तो एंथ्रोपोलॉजी का कैटेगरी बन जाता है। तो सडनली लाइक when you are talking about classical dance, when you are talking about classical theater, then they become part of aesthetic discourse. But when you are talking about folk performance, when you are talking about Desi Sanskriti, then that becomes part of some kinds of anthropological categories. तो सवाल ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल से, मैं जब अपना एमए भी कर रहा था तो ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग क्यों देख रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सो that was the like basic fundamental questions I started with, and that is the journey I'm going to share with you, I'm going to discuss with you। तो मैं अपने काम के थ्रू ही ये सारा कनेक्शन बनाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो उसमें जैसे मैं आता हूँ, बिहार से आता हूँ, बिहार में बहुत सारे, मुझे लगता है कि शायद कुछ बातचीत हुई होगी, और मे बी लाइक आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया। तो जो मैंने परफॉर्मेंस पे काम किया है उसमें विदेशिया तो काफी पॉपुलर हो गया है, विदेशिया को लेकर, लौंडा नाच को लेकर, और उसमें और भी दो तीन फॉर्म है जो कि अभी काफी कंटेम्प्रेरी में है। एक दुगोला बोला जाता है। सो दुगोला इज ए काइंड ऑफ लाइक कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग परफॉर्मेंस। उसको यूपी में चौगोला भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा जगह मुकाबला भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे परफॉर्मर्स, सिंगर्स, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल compete each other, and the competition will happen at the level of musical compositions. So basically many times instantly you have to compose some songs. So one can start with one point and then one can go to the another point, and that is the way. And that is in fact becoming the major sites where, like if you're thinking about Bhojpuri song, if you're thinking about many other songs, and that is the way like songs and musics are getting composed। हम उस पर भी बात पे आएंगे कि भोजपुरी को लेकर जो एक डिबेट बना हुआ है कि वल्गरिटी का फॉर्म है, उसमें बहुत तरह की अश्लीलता के बारे में बात होती है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं और उस पर कैसे बातचीत हो सकती है। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग दोज क्वेश्चंस ऑफ लाइक इरोटिसिज्म, दोज क्वेश्चंस ऑफ वल्गरिटी, ऑब्ससीनिटी अटैच्ड टू द फोक परफॉर्मेंसेज एंड रिलेटेड टू दैट। तो फंडामेंटल क्वेश्चन यही था कि क्या रीजन है, व्हाट कुड बी द रीजंस दैट दिस परफॉर्मेंसेस आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्टेट। सो अनलेस दिस फॉर्म्स डू नॉट बिकम लाइक क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, तो छाओ एक बार थोड़ा सा सेमी क्लासिकल हो जाता है तो उसके साथ दूसरे तरह की वैल्यू अटैच हो जाती है। दे गेट लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम IGNCA, फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, फ्रॉम इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप। जब तक वो फोक बना रहता है तब तक उसका दूसरा इवेल्युएशन होता है। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन, एस्थेटिक डिस्टिंक्शन है, उसका बेसिस क्या है? तो कोई बता सकते हैं कि हो सकता है कि स्किल्स के बारे में है कि भरतनाट्यम में ज्यादा स्किल्स है और फोक परफॉर्मेंस में कम स्किल्स है। बट लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट कुड बी द पॉइंट। अगर आप लौंडा नाच देखेंगे, बहुत तरह के थेराकुटू देखेंगे, बहुत तरह के जो परफॉर्मेंस देखेंगे, इफ यू गोइंग टू सी दोज परफॉर्मेंसेज देन यू कैन नॉट मेक आउट क्लियरली दैट दैट इज रियली रिलेटेड टू स्किल्स, और दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ स्किल्स। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, उसी से हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीजंस दैट लाइक द वे क्लासिकल फॉर्म्स आर सीन, not necessarily the same way folk performances are seen in our own context or Indian aesthetics context। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो एक दो जवाब आए, फिर हम उसी के कनेक्शन बनाते हुए चलेंगे। सो व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ दिस मार्जिनलाइजेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? इसमें बहुत सारे आंसर हो सकता है, मुझे पता है कि बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो अगर दो तीन मुझे जवाब मिल जाए देन आई कैन पिक अप सम ऑफ द थ्रेड्स एंड वी कैन डिस्कस दैट। क्या मैं सुनाई दे रहा है? मैं एम आई ऑडिबल? इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir, you are audible. हाँ। I think सर एक तो जो आपने अभी खुद ही बोला कि we have this this notion associated with the standard thing। तो I think classical को हम वो standard वाली form में ले जाते हैं। I think कि folk वाले को भी consider that this is related to some particular community only। तो I think वो एक mentality शायद that might be the reason।
Yeah, thank you so much. So standardization is the one of the reasons. So unless your forms are not getting standardized, unless it is not able to create that sorts of grammar that can be legible to, like, your intellectual discourses, to that kinds of, like, maybe middle class, then perhaps your forms are not getting recognized. So yeah, you're right that how this standardization, that unless you're not getting that a standard model to discuss about the forms, to discuss about the movements, to discuss about the body and gestures, it becomes difficult that how you are going to talk about that forms, and then necessarily you are getting relegated to some kinds of anthropological categories, and where you can talk about that these forms are ritual, these forms are festivals, but these forms are not classical or does not have aesthetics. और कोई एक दो और जवाब देना चाहेंगे यहाँ पे? सर सेकंड, आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, बहुत सारा जो फोक फॉर्म्स है वो ओरल में है, ओरल ट्रेडिशंस में है, तो माइट बी बिकॉज उनका हमारे पास लिटिल रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वजह से भी शायद उसके फॉर्म में प्रॉब्लम आता होगा कि हम उसको नहीं। हाँ, नहीं, ओरल का भी बात है, हाँ, यू आर आल्सो राइट कि ओरल का भी बात है। मैं एक दो और ओपिनियन जानना चाहता हूँ दूसरे साइड से भी। सो थैंक यू, आपका बहुत बढ़िया इनपुट्स मिल रहा है, बट अगेन अगर एक दो और इनपुट्स मिल जाए तो। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द चैट बॉक्स, or you can raise your hand, we can unmute you and you can talk also. Anyone? ओके, तो जो मैं बात करना चाह रहा था, तो वैसे हाँ, तो आई थिंक या सो ज्योत्सना ने कुछ लिखा है, आई थिंक folk is viewed as simple, understood, so people look for complexity in traditional art. Yeah, right. Maybe because it relates to marginalized sections, so that's why also it does not fit into that discussion. Yes, yeah, so that is very much limited to the highest strata only. Yeah. DS नेगी जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, सो एनीवे आप बोल सकते हैं सर, ये है या नमस्कार सर। जी DS नेगी जी बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं, वो रिटन फॉर्म में है, डॉक्यूमेंटेड है, ग्रामर और रिफाइनमेंट के कई दौर से गुजरता है, फिर उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है। जैसे फोक की बात हो रही है, फोक में ज्यादातर ओरल फॉर्म में चीजें हैं, तो इसलिए जब वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती तो कुछ शब्द जो है बदल जाते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ इनएक्टमेंट में भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो वो शायद स्टैंडर्ड को कई बार मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन एक मुझे इससे संबंधित ये समझ में आया है कि जैसे एक फोक था उत्तराखंड में, जिसको अभी वर्ल्ड है कल्चरल हेरिटेज में डाला गया है, रामायण का, तो उसको जब डॉक्यूमेंट किया गया है तो 1-2 साल जब उस पर इनेक्टमेंट हुआ, प्रॉपरली डायरेक्शन हुआ उसका, तो उसका भी वो भी क्लासिकल फॉर्म में ही लगभग उसको रिफाइनमेंट उसका हो गया है। तो क्या अगर हम हर फोक को हर दौर में उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी प्रॉपर डायरेक्शन करते हैं, उसका म्यूजिक देखते हैं, उसकी ऑडिटरी देखते हैं, तो क्या वो भी उसी लेवल में फोक को भी माना जाना चाहिए या उसको माना जा सकता है? थैंक यू, इस सवाल पे हम आएंगे। थैंक यू जी। एक दो और हाथ उठा है। ओके, ऑल राइट, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो थैंक यू सो मच। DS नेगी जी ने बढ़िया से बताया, रमन पे काफी काम भी हुआ है, मगर काम तो इस लेवल पे हुआ है कि उसमें अगर देखेंगे कि 2 तरीके से, यू आर राइट, कि उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन किया गया, उसका एक टेक्सुअलाइजेशन हुआ, उसका एक रिकॉर्ड करने की जो पूरी प्रक्रिया हुई, उसमें 2 चीजें हुई। एक तो होता है कि एक ग्रामर दिया गया, उसका एक स्वरूप दिया गया, बट एट द सेम टाइम इट हैज ऑल्सो गॉन थ्रू मेनी इरेजर्स, एंड आई थिंक बेसिकली टू अंडरस्टैंड दैट फोक वी नीड टू टॉक अबाउट द इरेजर्स। जैसे जो फोक और क्लासिकल बनने की प्रक्रिया है वो छाव में भी हुआ है, बाकी परफॉर्मेंसेज में भी हुआ है, कि जब फोक से क्लासिकल की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसमें बहुत तरह के इरेजर का होता है। जैसे इरेजर होता है इरोटिक एलिमेंट्स को हटा देना, उसमें अगर मान लिया कि बहुत जगह हमारे रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे ब्लड का या लेदर का उस तरह का एलिमेंट्स आता है, उसको इरेज कर दिया जाता है। बहुत तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको इनऑस्पिशियस माना जाता है, उसको इरेज कर दिया जाता है। और इस इरेजर में क्या होता है कि एक तरह से उसके जो कम्युनिटी का अपना बिलोंगिंग था, जो उसका अपना इथोस था, जो उसका अपना प्रिंसिपल्स था, और व्हाट वी कैन टॉक अबाउट मटेरियलिटी था, जो फोक का अपना मटेरियलिटी था,
उसका भी एक लेवल पे इरेजर होता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक प्रक्रिया है जिसमें ये सारा कुछ बनता है। वो भरतनाट्यम का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरह से पहले जो फॉर्म था उसमें किस तरह से एक लेवल पे जो पूरा उसमें इरोटिक एलिमेंट, श्रृंगार के एलिमेंट्स थे, उसमें कुछ श्रृंगार के एलिमेंट को लिया गया, कुछ श्रृंगार के एलिमेंट को हटा दिया गया। तो ये पूरा काट के सफाई करके, तो एक सफाई करने की भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोक को क्लासिकल के दौर में बनाया जाता है, उसमें बनाया जाता है। और दैट इज द वे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट। मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा सा जो अपना किया हूं, तो उसमें फिर से आते हैं उसी फंडामेंटल सवाल पे कि क्या कारण है कि फोक को उस तरह से एस्थेटिक कैटेगरी में नहीं देखा जाता है। और इसका दो देखेंगे कि एक रीजनल उसका लोकेशन है। तो अगर देखेंगे कि बंगाली कल्चर में, अगर हम बंगाली कल्चर की बात करें, मराठी कल्चर, जब हमारे यहाँ कल्चर की बात होती है तो 4-5 तरह के कल्चर की बात होती है। लार्जर जो हमारा मिडिल क्लास डिस्कोर्स है उसमें उसी को ही कल्चर माना जाता है। उसमें बंगाली कल्चर है, उसमें भद्र लोग, वो भी बंगाली कल्चर सब नहीं, जो भद्र लोग का कल्चर है वो आपका कल्चर का स्टैंडर्ड बन जाता है। और खासकर जहां जहां मजबूत कॉलोनियल सेंटर्स रहे वो सब हमारे यहाँ है, जो कल्चर का बेसिस आधारभूत केंद्र भी बन गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें आप कोलकाता को देखें, कोलकाता है जो कल्चरल सेंटर बन गया। आप देखें महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र है जो कल्चरल सेंटर हो गया। मुंबई कल्चरल सेंटर हो गया। तमिलनाडु में चेन्नई कल्चरल सेंटर हो गया है। और ये सारे जो सेंटर थे उनका एक एसोसिएशन कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कॉलोनियलिज्म के साथ। कॉलोनियल उसमें जो एजुकेशन हुआ, जिस तरह के एक्सपोजर मिले, वो जिनको जिनको एक्सपोजर मिला, तो बेसिकली जो पूरा कल्चर का ही हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जिस तरह का फॉर्मेशन हुआ है उसका एक इंट्रिंसिक विशेष ये हो गया है कि ये मिडिल क्लासाइजेशन हुआ है, कि मिडिल क्लास ने ही हमारे एक संस्कृति को डिफाइन कर दिया है। उन्होंने ने ही परिभाषित कर दिया कि ये संस्कृति है और ये संस्कृति का पार्ट नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन वहां पे आ जाता है कि आप जब बात करेंगे पंजाब की बारे में बात करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के बारे में बात करेंगे, तो आप बताएंगे कि हाँ कल्चर है वहां पे, लेकिन वो कल्चर है जो भरतनाट्यम के कल्चर जैसा नहीं है। वो कल्चर है जो बंगाली, लेकिन वो भद्र लोक कल्चर जैसा नहीं है। तो देयर इज ए इनहेरेंट डिस्टिंक्शन है जो कॉलोनियलिज्म के दौरान बना है, और बहुत ही एक ऑब्वियस डिस्टिंक्शन बना है जो अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ही मजबूती से हावी है, बहुत ही क्लियरली हावी है। और उसी वे में हम कल्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि, तो अगर आप देखेंगे ये जो 5-6 जो मैं कॉलोनियल सेंटर्स जो आपको बताया, वो चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो या उधर पुणे हो, ये सारे जो कॉलोनियल सेंटर्स बन रहे हैं। और जो भी पेरिफेरी में रह गया है उसको उस वे में कल्चर के लेवल पे नहीं, एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस से देखा जाता है। यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी उसका लेंस हो जाता है। तो जब कलकत्ता की बात आती है या जब चेन्नई की बात आएगी, भरतनाट्यम की बात आएगी, सो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक नो एस्थेटिक्स। बट व्हेन इट कम्स टू झारखंड, व्हेन इट कम्स टू लाइक नो सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक नो एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो इनहेरेंट डिस्टिंक्शन है जो एक कॉलोनियलिज्म की भी देन है, जिसके कारण भी ये सब चीजें हुई है। तो मैं जब सवाल ये कर रहा था कि क्या कारण है कि इस तरह से मार्जिनलाइजेशन हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद मेरा जो है सवाल चेंज हो गया सडनली। दैट लाइक नो क्वेश्चंस गॉट अनदर काइंड्स ऑफ लिफ्ट, इट गॉट सडनली चेंज्ड एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग दैट व्हाट कुड बी देयर स्ट्रेंथ। ये जो सारे जो फॉर्म्स हैं, फोक परफॉर्मेंसेस है, उसका अपना स्ट्रेंथ क्या है। हम छोड़ दीजिए कॉलोनियलिज्म के दौरान क्या हुआ, बाकियों ने क्या किया, लेट अस लीव दोज लाइक नो थिंग्स, कनेक्शंस, जस्ट टॉक अबाउट कि इनका अपना स्ट्रेंथ क्या है, जिसके बेसिस पे फोक परफॉर्मेंस अभी भी है, जो इसका कम्युनिटी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ये एक सवाल हमारे यहाँ बार बार होते रहता है कि अभी देखेंगे तो थिएटर में हम देख रहे हैं क्राइसिस का दौर चल रहा है। तो हम एनएसडी जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो उनको ऑडियंस नहीं मिल रही है, ऑडियंस बताते हैं कि हमें एक्टर नहीं मिल रहा है, ऑडियंस बता रहे हैं हमें बढ़िया थिएटर नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा क्राइसिस का दौर से जा रहा है पूरा थिएटर, इंडियन थिएटर है। और खासकर जो कंटेम्प्रेरी थिएटर है बहुत ही क्राइसिस के दौर से जा रहा है। लैंग्वेज के सेंस में क्राइसिस है, उसमें म्यूजिक के सेंस में क्राइसिस आया है। तो ये सारा क्राइसिस का दौर है। लेकिन आप बोलेंगे कि ये क्राइसिस है जो त्योहारों में क्यों नहीं आ रहा है, ये क्राइसिस तो रिचुअल में नहीं आ रहा है। आपका कोविड आया, सब कुछ आया, त्योहार चलता रहा, उसी तरह से ये जो कम्युनिटी के अपने रिचुअल्स थे, अपने फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ चल रहा है, वहां पे क्राइसिस नहीं आया। लेकिन थिएटर में क्राइसिस क्यों आ रहा है? तो क्या जो आधुनिक थिएटर है और या जो अभी कंटेम्प्रेरी थिएटर है, क्या कम्युनिटी से ऑलरेडी कट चुका है जिसके कारण से ये क्राइसिस आ रहा है? क्योंकि अगर कम्युनिटी से जुड़ा होता तो शायद ये क्राइसिस नहीं आता, जो क्राइसिस के दौर से ये जा रहा है। तो एक सवाल ये है जो मुझे अपनी फाइंडिंग मिली, उसमें ये लगा कि अगर आप देखेंगे उसका स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी जो लोग हमारे यहाँ लोक संस्कृति है, देसी संस्कृति है, उसका अपना
मजबूत आधार क्या है, तो मैंने जो खोजा एक है जो लैंड से कनेक्शन विद द लैंड। और चूंकि हमारा देश एक लेवल पे अभी भी हम बात करते हैं कि 60% 70% लोग हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटीज है, उस लेवल पे है, तो सवाल ये आता है कि एस्थेटिक्स डिस्कोर्स में कहीं भी, तो अगर एक देखा जाए, इसको समराइज किया जाए, तो अगर हम फोक लोक संस्कृति की बात करते हैं, देसी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो लैंड का क्वेश्चन, जो ये जो है धरती का क्वेश्चन है, धरा का लैंड का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में आता है। यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी फोक परफॉर्मेंसेज विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लैंड। एकदम ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, जहां पे उसका लोकेशन है, जिस तरह से वर्शिप करते हैं, तो इंटीमेट कनेक्शन है लैंड की। अब क्या होता है कि जब आप इंडियन एस्थेटिक डिस्कोर्स में जाएंगे तो लैंड का कैटेगरी ही नहीं। अगर जो आप कैनोनिकल एस्थेटिक डिस्कोर्स में जाएं तो आपके पास लैंड का कैटेगरी ही नहीं है। और जो भी एस्थेटिक डिस्कोर्स हमने ये किया है, जो कंटेम्प्रेरी आइदर क्लासिकल एस्थेटिक इंडियन एस्थेटिक डिस्कोर्स में जाए, नाट्य शास्त्र को ले लें या बाकी जगह पे ले लें, तो एक लेवल पे सीधे एक इरेजर ऑफ लैंड के मामले पे ही एस्थेटिक्स बना है। टू दैट एक्सटेंट, वो मैं अपनी किताब में भी बात किया हूँ कि टैगोर बता रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना एक लेख में लिख रहे हैं कि संस्कृति को कृष्टि से, ये संस्कृति का निर्माण तभी हो सकता है जब संस्कृति को कृष्टि से अलग किया जाएगा। To make like culture, to foundation, for the very foundation of culture, you need to get dissociated from agriculture. अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए, यही अगर हमारी संस्कृति को समझने का आधार बन जाता है कि अगर आप जब तक एग्रीकल्चर से अलग होकर संस्कृति को नहीं देखेंगे, तब तक आप संस्कृति के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, आर्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो मान के चलिए कि आपने 90% लोगों को हमेशा के लिए बाहर कर दिया, इस एस्थेटिक डिबेट से ही बाहर कर दिया, इस संस्कृति के डिबेट से ही बाहर कर दिया। और इस पे बहुत सारी बातें हुई है, नॉट ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जैसे रेमंड विलियम्स थे, तो रेमंड विलियम्स से बात करते हैं कल्चर की, सो ही सेइंग दैट कि हाउ कल्चर गॉट कंस्टिट्यूटेड, एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट कि कल्चर का जो शुरू का जो डिफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिटी के लेवल पे, वो कल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ही इज सेइंग दैट कि हाउ culture was the basis of cultivation of human faculty as well as agriculture। दोनों चीजें एक साथ भी थी। दूसरे साइड में कहा जाए कि वहां पे रियल जो एग्रीकल्चरल फिजिकल लेबर था उसके बारे में भी बात होती थी, और दोनों मिलाकर कल्चर का निर्माण होता था, निर्मित होती थी। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे क्लास सोसाइटी बन रहा है, जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है समाज में, उसमें क्या हो रहा है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी। जब आर्ट म्यूजिक की हम बात करते हैं, सो वी आर नेसेसरली टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ ह्यूमन फैकल्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ थेरेपी, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ कैथारसिस। तो ये सारी चीजें तो बात हो रही है, लेकिन उससे पूरा है जो एग्रीकल्चर को साइड करके रख दिया जाता है कि ऐसे जैसे ये एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, और एग्रीकल्चर है जो कल्चर का पार्ट नहीं हो सकता है। तो मेरा जो आर्गुमेंट ये है कि किस तरह से अगर आपको फोक परफॉर्मेंस को एस्थेटिक कैटेगरी में लाना है, तो सबसे पहले तो हमें उस लैंड के कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा, उस लैंड के कैटेगरी को एस्थेटिक कैटेगरी में लाना पड़ेगा। अनलेस वी आर नॉट ब्रिंगिंग द कैटेगरी ऑफ लैंड इन आवर एस्थेटिक कैटेगरी, परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू डू जस्टिस टू द फोक परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडिया और फोक परफॉर्मेंसेस ऑफ एनीवेयर फॉर दैट मैटर। और इसलिए अगर आप साउथ जाएं, साउथ में तमिलनाडु में अगर आप जाएं, तो तिनई करके उनका एक कॉन्सेप्ट है। तिनई को आप 2-3 वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशन तो होगा सेटिंग, दूसरा ट्रांसलेशन हो सकता है लैंडस्केप। काफी सारा एकदम मामला है जो लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है, लैंड से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जब भी वहां पे लैंडस्केप के बारे में बात होती है, तिनई के बारे में बात होती है, तो 4-5 चीजें जुड़ी हुई है। उसमें बात होती है कि एक पर्टिकुलर लैंडस्केप के बारे में बात हो रही है, सो दे विल टॉक अबाउट पर्टिकुलर फ्लावर and then particular emotion, and then they are also talking about particular deity, and then किस तरह से अगर एरिड जोन में बात होती है, अगर तमिलनाडु के लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में एरिड जोन में बात होती है, तो वहां पे माना जाता है कि लवर का सेपरेशन हो रहा है। सो हाउ एरिड जोन is giving you the sense of emotion that is about separation। जैसे हम भी विरह और मिलन की बात करते हैं हिंदी में, संस्कृत में भी यूनियन और सेपरेशन की बात हुई है। तो लेकिन वहां पे क्लियरली जो कैटेगरीज है जो पूरा लैंड से जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह से वहां पे लगभग 5-6 से ज्यादा ही लैंडस्केप कैटेगरी की बातें हुई है। और सारे जो लैंडस्केप है उसमें प्लांट के बारे में बात है, किस तरह का एग्रीकल्चर होता है उसके बारे में बात होता है, किस तरह के लोग हैं, कम्युनिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। सो व्हाट यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग इन तमिलनाडु तमिल लैंडस्केप इज दैट वेरी एसोसिएशन विद द लैंड।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें दिक्कतें नहीं है, उसमें भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं, क्योंकि तमिल लैंडस्केप में दिक्कतें ये हो रही है कि दे हैव रिड्यूस द होल लैंडस्केप इनटू टू कैटेगरीज, आइदर देयर इज अ लैंडस्केप ऑफ वॉर और लैंडस्केप ऑफ लव। दो ही तरह का लैंडस्केप है, एक को अहम बोला जाता है, एक को पूरब बोला जाता है। कि like so but again you can talk about very different other kinds of landscapes and different other kinds of emotions, वहां भी इस तरह का इरेजर हुआ है। but again despite of everything what we can suggest or say that at least in Tamil Nadu or South India in Dravidian landscape, Dravidian context, aesthetic context, you have category for the landscape. Same way, either you are talking about Jharkhand, either we are talking about आदिवासी communities, सब जगह लैंड, रिवर, माउंटेन को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरीज को लाया जा सकता है। और चूंकि हमारे यहाँ जो मेन क्लासिकल एस्थेटिक डिस्कोर्स है उसमें लैंड को लेकर कोई पर्टिनेंट कैटेगरी नहीं है, एंड देयरफॉर आई थिंक दैट इज कुड बी द रीजंस दैट हम है जो पूरे जो भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज का फेस्टिवल है, कल्चर है, डांस है, तो गिद्धा डांस जो पंजाब का है वो कभी भी एस्थेटिक डांस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एकदम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसका पूरा जो ब्यूटी का कॉन्टेक्स्ट है वहां से जुड़ा हुआ है। टू ब्रिंग दोज कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट, वी नीड टू आल्सो रिक्लेम सम ऑफ दोज न्यू कैटेगरीज थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दिस कैटेगरीज ऑफ लैंडस्केप और दिस कैटेगरीज ऑफ द लैंड फॉर दैट मैटर। और चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि जब हम फोक परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो लार्जली वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट agricultural communities, we are talking about Adivasi communities, we are talking about the communities who had a very intimate relationship with the river, with ecology, with the different other kinds of systems. And therefore, I think not necessarily land, but the question of landscape becomes important and I will say vital category to understand the question of folk performances. नहीं तो मुश्किल ये हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा था जब मैं जेएनयू में आया था एमए करने के लिए, तो यही सवाल हो जा रहा था कि हमारे पास कोई कैटेगरी ही नहीं था, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं था जिसके थ्रू मैं विदेशिया के बारे में बात कर सकूं, जिसके थ्रू मैं लौंडा नाच के बारे में बात कर सकूं। तो हमारा नाच हमेशा लौंडा नाच के बारे में बात करेंगे तो दैट लेवल इट्स वल्गर डांस, अश्लील डांस है, जैसे उसमें कोई स्किल्स नहीं है, बाकी सब बारे में बात ही नहीं हो सकती है। तो आई थिंक द चैलेंज फॉर अस, लेकिन सब लोग का जो इंटरेस्ट है इसमें, तो ये भी चुनौती ये भी है कि किस तरह से नए कैटेगरी बनाया जाए, नए तरह के कॉन्सेप्ट बनाया जाए, ताकि ये सारे जो फोक परफॉर्मेंस है, आपके अपने कम्युनिटी के परफॉर्मेंस होगा, आपके अपने कम्युनिटी के फेस्टिवल त्योहार होंगे, उसको कैसे और एक मजबूती दिया जा सके और उसको कैसे ओपन अप किया जा सके। और नहीं तो हम दूसरे आइदर वी आर यूजिंग वेस्टर्न कैटेगरी और आइदर वी आर यूजिंग क्लासिकल इंडियन कैटेगरी, नॉट नेसेसरली वी आर गोइंग टू गेट रियल सेंस ऑफ दिस परफॉर्मेंस कल्चर। वहीं पे शायद हम इस तरह इम्पोजिंग कैटेगरी हो जाता है कि हम उस पर इम्पोज करते हैं, अब रसा कुछ भी कैटेगरी लेके इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो परहैप्स हम वहीं पे उसको डेड कर देते हैं और परहैप्स वहीं पे उसको चुप कर देते हैं कि तुम यहाँ बोलने लायक नहीं हो। एंड दैट इज द वे दैट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन फोक परफॉर्मेंसेस लार्जली। दूसरा दिक्कत क्या हुआ है कि बहुत सारे हमारे यहाँ हिंदी में भी राइटिंग्स है, इंग्लिश में भी राइटिंग है, मेनी टाइम्स इट गेट्स लाइक रोमांटिसाइज्ड कि हमारा लोग तो बहुत बढ़िया है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें हमारे कम्युनिटी के मामले में भी बहुत सारी बातें हैं, एंड दैट इज लाइक अल्टीमेट कैटेगरी दैट वी कैन टॉक अबाउट। द फोक बिकम्स ऑल अबाउट कि सब कुछ है, उसमें सारा वर्ल्ड है। लेकिन आई थिंक इफ वी आर पार्ट ऑफ जेंडर्ड सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ द कास्ट सोसाइटी, देन वी शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि हमारा फोक परफॉर्मेंस भी उसी तरह से बटा हुआ है, हमारी लोक संस्कृति भी उसी लेवल पे बटी हुई है। वहां भी हर एक तरह का डिवीजन है जो साफ साफ दिखता है कि किस तरह से वहां भी जात है, जातीयता है, वहां भी जेंडर का मामला है, वहां भी बहुत अलग तरह के फ्रैक्चर्स है। तो ये भी नहीं माना जा सकता है कि लोक संस्कृति है जो बहुत ही सुंदर और हमेशा सुंदर ही रही है। फोक परफॉर्मेंस ऑल्सो बिकम्स अ साइट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन, फोक परफॉर्मेंस ऑल्सो बिकम्स अ साइट्स ऑफ इंस्लेवमेंट। और मैं अपने थीसिस में ये भी बात कर रहा हूँ, बुक में ये भी बात कर रहा हूँ कि बहुत बार तो ये होता है कि हमारे यहाँ का डांसर, लौंडा नाच करने वाला हो या बजनिया जिसको बोलते हैं, वो जितना ज्यादा म्यूजिक प्ले करता है और जितना ज्यादा डांस करता है उतना ज्यादा उसकी बदनामी होती है, उतना ज्यादा वो मार्जिनलाइज हो जाता है। So if you are going to dance more, you are going to get further marginalized. जैसे हम मानते हैं कि अगर शाहरुख खान है या कोई भी अगर बॉलीवुड का स्टार है, अगर एक डांस करेगा, एक पोज देगा तो करोड़ों रुपया बटोर के चला जाएगा, लेके चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का डांसर अगर वो डांस करता है तो और बदनाम हो जाता है, उसको और गालियां पड़ती है, उसको और दे फील दे गेट फर्दर ह्यूमिलिएटेड मेनी टाइम्स, दे ऑल्सो फेस लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन।
तो वहां पे नॉट नेसेसरली जो हमारा फोक संस्कृति है उसमें हायरार्की नहीं है। सो वी आल्सो नीड टू कंसीडर दैट फोक परफॉर्मेंस इज वेरी मच अ साइट ऑफ हायरार्की, जिसको हम माने बिना हम बात नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा, एक तो ये तरीका है कि फोक परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। दूसरा तरीका ये रहा है कि फोक परफॉर्मेंस में सब कुछ खत्म है, सो लेट अस गेट आउट ऑफ दोस परफॉर्मेंस ट्रेडिशन एज यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, कुछ भी उसमें नहीं है। इट बिकम्स अ साइट्स ऑफ वेस्ट लैंड, एकदम पूरा बर्बाद है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोनों जो ये अप्रोच करने का तरीका है वो बहुत ही अपने आप में एक लेवल पे नैरो भी है और एक लेवल पे कल्चर के अंडरस्टैंडिंग के बिना है। दूसरी बात है कि मेरे लिए फोक परफॉर्मेंस, जैसे मैं बहुत बार बात करता हूँ, हम क्लास में भी बात करते हैं, तो मुझे भूत प्रेत की कहानियां बहुत ही पसंद है। तो मैं भूत प्रेत की कहानियां सुनाता हूँ लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ। सवाल आता है कि तो आप आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ये सवाल आ सकता है। तो सवाल आना भी चाहिए। अब इसमें है कि अंतोनियो आर्तो करके थिएटर प्रैक्टिशनर रहे थे, और अंतोनियो आर्तो बहुत ही बड़े, जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट हैं उसी तरह से अंतोनियो आर्तो करके बहुत बड़े थिएटर प्रैक्टिशनर रहे थे। और उनका कहना था कि थिएटर्स वी शुड नीड टू ब्रिंग थिएटर एट द लेवल ऑफ सेंसेशन रिचुअल। तो थिएटर को किस तरह से उस सेंसेशन पे लाया जाए, जहां पे जब थिएटर देखने का मामला हो या कला को देखने का मामला हो, जो सेंसेशन उस समय जब होता है ना, अब जब भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं, तो भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मामला ये नहीं कि भूत प्रेत की कहानियों के बारे में है। भूत प्रेत की कहानियां हैं जो आपके पूरे बॉडी को रोमांच देता है, पूरे बॉडी को झकझोर के रख देता है। जब आप एक थ्रिलर देखते हैं, मर्डर थ्रिलर देखते हैं या उस तरह के थ्रिलर देखते हैं, तो सवाल ये भी आ सकता है कि अभी तक ह्यूमन का इंटरेस्ट थ्रिलर में क्यों है। लेकिन थ्रिलर तो सबको पता है कि यू आर लाइक नो, बेसिकली यू आर वाचिंग ऑल द नॉनसेंसिकल मर्डर थ्रिलर, वायलेंस है, सब कुछ हो रहा है, बट अगेन वी लव टू वॉच इट। तो उसका मतलब, बट देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो पूरा बन गया है कि वी ओनली थिंक थ्रू आवर माइंड, हम माइंड से ही सोचते हैं। जब आप थ्रिलर देखते हैं तो लगता है कि पूरे बॉडी से सोच रहे हैं, पूरा बॉडी आपका रिएक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से जब हम भूत प्रेत की कहानियां का मामला ये नहीं है कि वेदर इट इज सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस और नॉट, द पॉइंट इज दैट कि वो है जो किस तरह से सारे बॉडी को आपको एक्टिवेट करता है। आप सारे बॉडी से सोचते हैं, सारे बॉडी से आप रिएक्ट करते हैं। एंड देन द क्वेश्चन आल्सो कम्स दैट इज देयर पॉसिबल टू ब्रिंग दोज बॉडली थिंकिंग इन आवर ओन कंसिडरेशन। जैसे ये हुआ है कि हम मान लिए हैं कि माइंड से सोचते हैं। अब डांसर लोग बोलते हैं कि हम घुटने से सोचते हैं। अब इंडियन सोसाइटी में कोई बोलेगा कि घुटने से सोचते हो क्या, तो वो तो जोक हो जाता है कि नहीं घुटने से सोचते हो, आर यू थिंकिंग फ्रॉम योर नी, एंड दैट विल बिकम ए बिग जोक। बट द होल पॉइंट इज दैट डांसर थिंक थ्रू देयर नी। वो डांसर है जो घुटने से ही सोचते हैं। ये है जो हमारे स्टडी का मामला है, हमारा आर्गुमेंट है। एंड लाइक नो ऑल द डांसर विल एक्सेप्ट कि हम घुटने से सोचते हैं, और उस मानने में कोई बुराई भी नहीं है। तो अगर डांसर है जो घुटने से सोच सकता है, तो हम पूरे बॉडी से क्यों नहीं सोच सकते हैं। और इसलिए नॉट नेसेसरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट भूत प्रेत स्टोरीज और भूत प्रेत रिचुअल्स एंड थिंग्स, देन आई एम इंटरेस्टेड इन दैट स्पिरिचुअल वर्शिप। आई एम इंटरेस्टेड इन द डेवलपिंग ए न्यू लैंग्वेज where all body can participate or where we can talk about distribution of sensible। जैसे ये भी है ना, सवाल ये भी आता है कि जब हम फोक लोर के बारे में बात कर रहे हैं, फोक परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एस्थेटिक्स को कैसे समझते हैं। व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या कोई ब्यूटी ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटी है, या एस्थेटिक्स का मतलब हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कुछ अलग है। और अभी जो नए तरह के जो सवाल आ रहे हैं, नई जो बातें आ रही है, उसमें हम एस्थेटिक्स को मानते हैं कि संवेदनाओं का वितरण। तो सवाल ये है कि एस्थेटिक्स है जो संवेदनाओं का वितरण कैसे करेगा। और जब आप संवेदनाओं का वितरण करेंगे तो उसमें उस तरह का रोमांच, उस तरह का सेंसेशन को लाना जरूरी है, जिससे हम आइदर डरते हैं, जिससे आइदर कोप खाते हैं, और जिसको हम लाइक चैलेंज करने से बचते रहे हैं। तो हाउ टू, देयर आर 2-3 ways। वन, दैट वी आर ट्राइंग टू रिक्लेम सम ऑफ दोज लैंग्वेजेस दैट वी हैव लॉस्ट, द बॉडली लैंग्वेजेस, the languages of the eye, the languages of the sight, the languages of the hearing। जैसे अभी भी बहुत सारी कम्युनिटी है जो बहुत सारे साउंड सुन सकते हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और ये घटना हुई थी कुछ साल पहले, आई थिंक इन झारखंड। तो वहाँ पे कुछ रीजन से ये हुआ था, आई थिंक या ऑलमोस्ट लाइक 10 years बैक नाउ। तो उसमें बहुत सारे जो हाथियों का झुंड था झारखंड से, और वो जो हाथियों का झुंड था वो वहाँ आसपास में मुंडारी कम्युनिटी के लोग रहते थे, जो मुंडारी बोलते हैं। तो हाथियों का ये झुंड है जो उड़ीसा के बहुत सारे गांव में चला गया, वहां पे बहुत हड़कंप मच गया। एंड देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज्ड टू हायर ए आदिवासी गर्ल, एक आदिवासी गर्ल लड़की को हायर करता था बार बार। और वो लड़की क्या करती, शी वाज आई थिंक दैट टाइम अराउंड 12 years ओल्ड, 12 साल की थी, उसको हायर करता था। वो जाके हाथी से कुछ बात करती थी, हाथी वापस चला जाता था।
सो दिस लुक्स लाइक कि मैं कुछ बहुत ही आपको एक सेंसेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ, बट दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी रिपोर्टेड बाय मेनी ऑफ द न्यूज पोर्टल्स, न्यूज मीडिया। तो उसमें क्या है कि उस लड़की से बाद में रिपोर्टर पूछता है कि तुम करते क्या हो, व्हाट एग्जैक्टली यू टेल टू द एलिफेंट्स। वो लड़की बोलती है मैं कुछ नहीं, मैं तो मुंडारी में उससे बात करती हूँ। तो ठीक है, मुंडारी में बात करती हैं। दूसरा, दैट कनेक्शन वी आर ट्राइंग टू मेक, किसी भी लैंग्वेज का निर्माण होता है तो एक इकोलॉजी में होता है, उसका एक इकोलॉजिकल, वेदर एनिमल इज पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजी, ह्यूमन इज पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजी, अ स्पीसीज आर पार्ट ऑफ दैट इकोलॉजी, एंड वी आल्सो डेवलप सम काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। तो उसमें फिर ये बोला गया कि मुंडारी तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी ही बात क्यों सुनता है, बाकी के लोगों की बात क्यों नहीं सुनता है। तो मैं इस तरह से मुंडारी बोलती हूँ जैसे हाथी बोलते हैं, जैसे लाइक रेजोनेट, यू हैव टू प्रॉपर्ली रेजोनेट योर वॉइस। तो उसमें है कि रेजोनेट करने के कारण, एंड दैट हाउ लैंग्वेज वाज एबल टू व्हाट एक्सटेंट लाइक नो एलिफेंट वाज एबल टू अंडरस्टैंड एंड नॉट, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिबेट, बट यस यू हैव प्रूफ, यू हैव एविडेंस, जहां पे ये बात हो रही है कि हाथी है जो वहां मूव करके चला जा रहा है। बट द पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज ऑफ फोक लैंग्वेज की जब बात होती है, फोक संस्कृति की बात होती है, तो एक पूरा उसका इकोलॉजी में निर्माण होता है, जिसमें नॉट ओनली ह्यूमन इज द सेंटर, उसमें बहुत तरह के लोग हैं जिसके साथ डायलॉग से आपका लैंग्वेज का भी निर्माण होता है, आपकी संस्कृति का भी निर्माण होता है, एंड दैट ऑल्सो क्रिएट योर सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। इसलिए भी उस सेंसेशन और सेंसिबिलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसको कैसे समझेंगे। उसके और एक एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, और एक दो वीडियो भी मैं प्ले करूंगा। एक एग्जाम्पल और है कि जब ये कोंध ट्राइब का इशू चल रहा था यहाँ पर उड़ीसा में, जहाँ पे वेदांता के द्वारा उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, तो उनका आर्गुमेंट ये था, कम्युनिटी वाज सेइंग दैट कि हम तो इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि इस हिल्स की सेवा कर सकें, हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि पहाड़ बाबा जो भी है उनकी हम सेवा कर सकें, अगर तुम उसी को काट दे रहे हो तो हमारे पर्पज ऑफ लाइफ ही खत्म हो गया। Are you getting this point? So this is like a high moral ground this community is talking about. So they are not interested in your ecological debate or environmental discourses. They are saying that we have come to this world to save these hills, and if you are going to cut these hills, then what is the purpose of our living? और ये कोई ये नहीं है कि वो डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ परफॉर्मेटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं कि लोग सुनेंगे। दे रियली बिलीव दिस, वो इनका पूरा उसी तरह का विश्वास ही है। ये नहीं कि किसी ने उसको बता दिया है कि ऐसा बोलोगे तो बच जाओगे, ये नहीं है। दे क्लियरली बिलीव दिस कि वो इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि इस हिल्स को और इसकी पूजा कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अगर इस तरह का विश्वास है, इस तरह की सेंसिबिलिटी है, तो अगर बिना उस सेंसिबिलिटी की और बिना उस एस्थेटिक कैटेगरी के बारे में बात किए हुए हम कैसे बात कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जो इसी सबसे रिलेटेड है, वो है सो न्यूजीलैंड में माओरी कम्युनिटी है, और माओरी कम्युनिटी में एक बहुत ही फेमस डांस होता है, फोक तरह का ही डांस है, उसको आदिवासी डांस भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि दोनों कैटेगरी है, बहुत ही लैप्स होते रहता है। तो उसमें वो जो कम्युनिटी है जो डांस करती है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पोटैटो डांस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि यंग गर्ल्स जनरली, सो व्हाट हैपेंस दैट लाइक जो यंग लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती है, सो जब भी पोटैटो लगा के वो बहुत ही पोटैटो का सेवा करती है, एंड दे ऑल्सो डांस अराउंड पोटैटो विद दिस बिलीफ कि अगर डांस करोगे, म्यूजिक प्ले करोगे, तो पोटैटो बहुत तेजी से बढ़ेगा, एंड पैदावार इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, द प्रोडक्शन इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। So they have again this inherent belief in this tradition that if you're going to dance around potato, if you dance around this plant, then potato are going to grow. अब ये है कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो पोटैटो तो कभी इस तरह से ग्रो करेगा नहीं। इफ यू आर डूइंग डांस और म्यूजिक, कोई बेसिस नहीं हो सकता है जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये कोई ऐसा आधार हो सकता है जिसके कारण पोटैटो बढ़े। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन रियली मल्टीप्लाइज, प्रोडक्शन सच में है जो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसे है ना कि ये रीजन दिया जा रहा है कि वो डांस और म्यूजिक करते हैं विद दिस इनहेरेंट बिलीफ दैट पोटैटो विल ग्रो और पोटैटो विल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो विल मल्टीप्लाई, एंड एट द एंड ऑफ दिस थिंग्स पोटैटोज आर रियली दैट प्रोडक्शन इज रियली गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो उसमें जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो स्कॉलर थे, उनका आर्गुमेंट ये था कि चूंकि उनका इस तरह का फेथ है, इस तरह का विश्वास है, उस विश्वास के कारण वो ज्यादा ही पोटैटो की सेवा करते हैं, ज्यादा ही वाटर करते हैं, वाटरिंग करते हैं, टेक केयर करते हैं। इस कारण से पोटैटो में बी गेटिंग ए लाइक नो दे आर गेटिंग ए बेटर रिजल्ट। सो दैट कुड बी ए रीजन कि चूंकि आपका बहुत ही उस तरह का मामला है, जैसे हो सकता है कि अगर बहुत ही इंटीमेट वे में किसी चीज को कल्टीवेट किया जाए,
किसी चीज को ये किया जाए तो प्रोडक्शन ऑफ कोर्स विल मल्टीप्लाई एंड इफ यू आर डूइंग थ्रू सम काइंड्स ऑफ इफेक्टिव लेंस। तो एक तो ये मामला है। अभी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हो रहा है साइंस के फील्ड में, आर्ट और साइंस के बाउंड्रीज पे, उसमें है कि वी आर गेटिंग अ रिजल्ट, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स where like they are really showing that कि some plants love to hear pop music और कुछ plants को classical music पसंद है। अभी जो कंटेम्प्रेरी जो काम चल रहा है न्यूरोलॉजी के फील्ड में, बाकी सब साइंस के फील्ड में, एंड दोज रिजल्ट्स आर क्लियरली शोइंग एंड सजेस्टिंग दैट कि प्लांट्स आल्सो रिएक्ट टू म्यूजिक, प्लांट्स आल्सो रिएक्ट टू योर डांस और रिदम, नॉट डांस बट रिदम। तो उसमें क्या है, और एकदम पूरा क्लियरली, एक जियोइया की किताब है, एक जियोइया है, टेड जियोइया, TDGIOIA, टेड जियोइया, उनके काम किए हैं, उनका काम है वर्क सॉन्ग्स। वर्क सॉन्ग्स पे जब बात कर रहे हैं तो ही सारा एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि किस तरह से फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स दे ऑल आर रिएक्टिंग टू म्यूजिक। इसलिए अब आप यूरोप में चले जाएं कहीं भी फार्म हाउस में, अब सारे गायों को म्यूजिक सुनाया जा रहा है, and they are getting to just to multiply. They are of course like no corporate business, like adventures, so they are like just trying to multiply the production. Usme from plant to animals they are playing music everywhere. So now you are getting a new result in which like what earlier we used to think about कि प्लांट सुनता है नहीं सुनता है, अब तो बता रहा है कि किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को रॉक पसंद है, किसी को पॉप पसंद है, तो इस तरह का मामला है। तो देन हाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर आवर फील्ड। तो ये सिर्फ अंधविश्वास का मामला नहीं रहा, दिस इज नो मोर क्वेश्चन अबाउट सुपरस्टिशियस थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू काइंड्स ऑफ रिजल्ट दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम साइंस फील्ड। तो एक तो ये है जो मैं बता रहा था कि हाउ वी कैन without thinking about landscape, perhaps we cannot do justice to thinking about our folklore, our folk performances, our local संस्कृति। तो एक तो ये कैटेगरी है। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं कि और क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, तो एक तो स्ट्रेंथ जो मैं ढूंढने की कोशिश किया कि लैंड, चूंकि उसको लैंड से ही काट दिया गया है, जो उसका मजबूत आधार है उसको अपने रूट से ही काट के देखा जा रहा है, एंड देयरफॉर दिस परफॉर्मेंसेस आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड इन आवर एस्थेटिक, लार्जर एस्थेटिक डिस्कोर्स। दूसरा जो मैं ला रहा हूँ कैटेगरी, उसको बोल रहा हूँ मैं मेटेरियलिटी, कि बहुत बार क्या होता है कि बॉडली डिस्कोर्स पे बात होती है। तो अगर यात्रा के बारे में, जो लोग बंगाल से आए हैं, इफ यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ यात्रा, तो यात्रा में क्या होता था कि अर्लियर इफ यू आर थिंकिंग अबाउट यात्रा बिफोर लाइक कॉलोनियल काइंड्स ऑफ इनकाउंटर, तो उसमें धोबी जाति के लोग या उस तरह के बहुत ही मेहतर कम्युनिटी के लोग आते थे यात्रा के स्टेज पे, और वो है जो कुछ कुछ कॉमिक इंटरल्यूड्स करते थे, जो हमें रिकॉर्ड मिलता है, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स मिलता है, और उस पे वो आते थे, कुछ कुछ जेस्चर करते थे, और उसके बाद दैट इज टू सेट द थिएटर ऑफ यात्रा, वो पूरा स्टेज है जो तैयार होता था, करते थे। अभी क्या हुआ है कि बिकॉज यू हैव दिस होल आइडिया, वेरी डेनिग्रेटेड आइडिया अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द कास्ट, और किसी ने बताया है कि नहीं, किसी ने बोला ही कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, क्वेश्चन ऑफ फोक इज ऑल्सो अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जहां पर कि अगर आपका आर्ट और कल्चर, आपका आर्ट एंड कल्चर है, लेकिन दूसरे का आर्ट एंड कल्चर के बारे में आप बात ही नहीं करेंगे, तो यही होता है कि जब हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जब एस्थेटिक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो बाकी जगह जब हम यूरोप के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं, चाइना के बारे में बात करते हैं, तो सब जगह हायरार्की, सब जगह है, नोबडी इज डिनाइंग दोज हायरार्की। हमारे यहाँ दिक्कत है, कास्ट सोसाइटी में दिक्कत दूसरे लेवल पे है। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ हम मानते ही नहीं है कि दूसरे के पास कैपेसिटी ऑफ टेस्ट है। दूसरे लोग मानते हैं कि आपका कैपेसिटी ऑफ टेस्ट हमसे लोअर है, कैपेसिटी ऑफ टेस्ट में भी डिफरेंट, द वे यू सी द थिंग्स, द वे आई सी द थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पे ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि दूसरे के पास भी एस्थेटिक्स टेस्ट है, दूसरे भी म्यूजिक सुन सकते हैं, दूसरे भी दे कैन ऑल्सो रिस्पॉन्स टू योर डांस एंड दोज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ये जो कास्ट सोसाइटी में खासकर जो सेग्रीगेशन का मामला है, वो बहुत ही दूसरे लेवल पे है, और इस कारण से चूंकि मोस्ट ऑफ द फोक परफॉर्मेंसेज आर still practiced by the like lower communities, lower caste communities, largely like Dalit OBC communities, and therefore precisely that also becomes the reasons that they are getting marginalized. तीसरा दिक्कत ये हुआ है कि बहुत ही एक हेजेमोनिक डिस्कोर्स भी हुआ है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि, और उसमें कोई दिक्कत भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हुआ है कि कुछ दिन पहले IGNCA ने एक ये चलाया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था। प्रोजेक्ट में था कि दे वर ट्राइंग टू फाइंड द फुटप्रिंट्स ऑफ महाभारत, कि वो सब जगह जाते थे, हिमाचल जाते थे, उत्तराखंड जाते थे, एंड दे यूज्ड टू फाइंड आउट कि वहां पर फुटप्रिंट, पांडवा का फुटप्रिंट किधर है। तो उसमें क्या है कि ठीक है, आप महाभारत को रखिए, रामायण को रखिए, देयर इज नो इश्यू विद दैट,
But again, with some kinds of homogenization, what is happening that we are trying to find, we are losing our local epics. जो लोकल अपना हमारा एपिक्स था वो भी ब्रॉडर एपिक का पार्ट बनता जा रहा है, एंड वी आर लूजिंग दैट होल लाइक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लोकल एपिक्स. तो हमारे यहाँ, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में क्या है कि जो भी आजकल फेस्टिवल है सबको एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि आइदर दे मस्ट बी समवेयर कनेक्टेड विथ वेदास. Of course, Vedic culture is important. One realizes its significance, but not necessarily all the culture had to be related somewhere to the Vedic culture. एक बार अगर आप उस डिफिनेशन में आप लाते हैं तो उसी कनेक्शन से आप चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट से देखना शुरू कर देते हैं, उसी टेक्स्ट से देखना शुरू कर देते हैं, एंड देन इट लीड्स टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस अगेन दिस काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस ट्रेडिशन, एंड वी आल्सो लूज आवर ओन लोकल नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट इन विच ट्रेडिशन हैव डेवलप्ड, एंड मस्ट डैमेजिंग थिंग्स हैपेंस विद इकोलॉजी. एक बार बड़ा ट्रेडिशन हावी होता है तो पूरा इकोलॉजी को काट देता है आपके सोसाइटी से और आपके फोक परफॉर्मेंसेस से, एंड दैट इज हैपनिंग इन ए मेजर वे. तो मेटेरियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बात किया हूँ, वहाँ पे ऑब्ससिनिटी के बारे में बात किया हूँ, और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, वो किताब में भी दिया हूँ कि हमारे यहाँ खासकर जो भोजपुरी बेल्ट से आए हैं, मखी बेल्ट से आए हैं और उस बेल्ट से आए हैं, सो देयर इज टू बी पॉपुलर सॉन्ग लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए. सो लौंडा इज अ फीमेल इम्पर्सनेटर. Londa means like a female impersonator is getting in famous for you, oh darling audience. That should be a translation. कि किस तरह से मैं, so basically it was like to make your colonizers happy. They used to sing this song. That was to be a very very popular song at a point of time. अभी क्या हुआ कि तो जब तक लौंडा बदनाम हुआ था तब तक कोई भी मिडिल क्लास और कोई भी उस तरह से एलिट क्लास के लोग थे जो गाना वो सुनना भी नहीं चाहते थे. अगर लौंडा बदनाम हो चला दीजिए तो उनका टेस्ट ही खराब हो जाएगा कि क्या गाना चला, मैंने क्या बदनामी कर रहे हो, मैंने हमारे पूरे समुदाय के, हमारे पूरे कल्चर की बदनामी हो जा रही है. बट व्हेन सेम सॉन्ग के मेज लाइक मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो पूरा सारा बॉलीवुड नाच किया एंड सारा मिडिल क्लास उस पर नाच किया. तो क्वेश्चन वी कैन आस्क कि इट इज सो इज इट अबाउट ऑब्ससिनिटी? ऑब्ससीन एलिमेंट्स वाज देयर इन लौंडा नाच, ऑब्ससीन एलिमेंट वाज देयर इन मुन्नी बदनाम हुई, बट व्हाट इज द डिस्टिंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? कि क्या कारण है कि लौंडा बदनाम हुआ बदनाम हो जाता है, दैट बिकम्स इनफेमस, दैट बिकम्स वल्गर कैटेगरी, बट व्हेन इट कम्स टू द मुन्नी बदनाम हुई देन इट बिकम्स लाइक एक्सेप्टेड कैटेगरी इन दैट वे. सो व्हाट इज द थिंग्स एलिमेंट्स दैट आर डिसाइडिंग our notion of vulgarity, our notion of obscenity, our notion of erotic? तो एक सवाल यहाँ भी हो सकता है कि क्या कारण है कि इस तरह से हुआ है. उसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत तरह के फोक परफॉर्मेंसेज हैं, और खास तरह के अगर फोक थिएटर के बारे में मैं बात करूं तो उसमें एक टेंडेंसी जो दिखता है, जिसके बारे में बहुत तरह के, एक सुजन साइजर स्कॉलर हैं, सी डिड दिस बुक लाइक, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है अ स्टिग्मा ऑफ तमिल स्टेज, और उसमें वो बात कर रही है, तो जैसे तमिल स्टेज के बारे में बात कर रही है तो उसमें वो बात कर रही है एक स्पेशल नाटक के बारे में, उसको इज़ाई नाटकम बोलते हैं तमिलनाडु में, या स्पेशल तमिल ड्रामा भी बोला जाता है उसको. सो व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट दैट देन शी इज मेकिंग वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन. उस ऑब्जर्वेशन में बताती है कि फोक स्टेज पे जो भी बड़े बड़े कैरेक्टर जो रोल प्ले करते हैं उनका मूवमेंट बहुत कम होता है. तो सपोज द पर्सन इज प्लेइंग द रोल ऑफ किंग, then movement is going to very like calculated, and the movement is going to be very slow. The movement will have some weight, some value, and that is the way the king is going to move, or maybe the same way queen is going to move. But if you are thinking about the joker character, comedian character, or maybe the lowly characters, then you will see that they are making a lot more movement. So excess of movement, they are constantly dancing, they are constantly moving. तो ये भी होता है कि if you are moving a lot, making a lot of movement, then there is a chance that if you are not able to strategize your own position, if you are not able to make your conscious choice of the movement, then there is a chance that your own culture, your own movement are getting marginalized. और ये है जो स्टेज पे खूब बढ़िया से देखने को मिलता है, because even folk performance, as I was saying, is very much hierarchical in that way, where like we are going to talk about social position, they are talking about like different kinds of hierarchies, and then that also shows that how we are going to understand folk performances in relation to the movement, in relation to the like rhythm. इसी से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, जैसे हरियाणा में बात होती है रागनी के बारे में. अब रागनी का पूरा जो म्यूजिकल टोन इस लेवल पे सेट कर दिया गया है कि महिलाएं गा ही नहीं सकती है, मैंने इस लेवल पे ही पूरा हाई टेंड इस लेवल पे कर दिया गया है कि इट बिकम्स कंफर्टेबल फॉर मेल, तो इसमें पूरी महिलाओं को ही बाहर आप कर दो, अनलेस देयर आर सम एक्सेप्शनल्स.
फीमेल हु कैन अफकोर्स सिंग, बट अगेन ट्यून ही इस लेवल पे आप पिच कर दो कि महिलाएं बाहर हो जाए। तो इस तरह के बहुत तरह की हायरार्कीज है जो मूवमेंट के लेवल पे, रिदम के लेवल पे, म्यूजिक के लेवल पे भी देखा जाता है और जो देखा जा रहा है। उसी तरह से एक और हायरार्की, सो ये सारे जो है जो मेटेरियलिटी का पार्ट है जिसको मैं मान के चलता हूँ कि दीज आर सेम वे लाइक इफ यू हैव डांस वेयर लाइक यू हैव लॉट ऑफ मूवमेंट्स विथ लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि लौंडा नाच में काफी होता है। उसमें बहुत तरह के और भी साउथ इंडियन डांस में बहुत तरह होता है। एंड देन यू विल फाइंड दैट कि जनरली दोज डांस आर सीन इन ए लो लाइट। जब अपर पार्ट का मूवमेंट है तो स्टिल सीन इन ए काइंड ऑफ लाइक विथ सम काइंड्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स, बट इफ योर मूवमेंट ऑफ द लोअरली पार्ट, so that also those discourses are coming through the body, how bodies are creating these kinds of discourses, जहां पर कि अगर लोअर पार्ट्स का ज्यादा मूवमेंट है तो then inherently your dance is getting infamous, your dance is considered vulgar, your dance is considered obscene in that way. Otherwise, if you are thinking through this idea of the erotic categories, then there is a no basis that why Londa Badnaam Hua should become infamous and Munni Badnaam Hua should become famous in that way. Otherwise, if you have any answer, I would love to hear that, but I don't find any connection with that, or precisely with the reason that because Londa used to come from largely from the Dalit community, they used to come from the lower caste community, and therefore they used to get infamous, or they used to get humiliated for various reasons, and they still get humiliated. तो इसी बात पे एक लौंडा डांस हम देखते हैं। I will try to play and hope you are able to see it, and then we will go further. Hope I am able to make some connection. अगर कनेक्शन नहीं बन रहा है तो आप लिख सकते हैं मैसेज में, मैं देखने की कोशिश करूंगा। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। कुछ मैं पहन रहा हूँ, कुछ और। देख पा रहे हैं आप लोग? सारा चीज लड़की का पहनना है तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा था, नर्वस भी हो रहे थे। सेक्स इंप्रेस के लिए भी कहते हैं, बस उसका मन है तो 1000-2000 रुपया दिया, चलो उसमें ही वो बम बम है, लेकिन पैसा कमाना था, बस यही तो मस्तिष्क में था। लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे। मैं 8वां क्लास में दनियामा में पढ़ रहा था, तब एक लड़का मेरा दोस्त था, वो कहा कि मेरे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है विदेशिया। मैंने बोला कि चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। निकलता था नदी के तीरे, मेरा मुख्य जीवन यापन का स्रोत मेरे फादर हैं जो सांप पकड़ते हैं। तो रोहानी धीरे रे धीरे, उससे कुछ रुपया हो जाता है, एक सांप का 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया। मैं चुका है, कोई फैशनेबल हो रहता था, करा हम भी करने, हमको ही कही कि एक रात प्रोग्राम करते हैं तो 1000 रुपया मिलता है, नहीं प्रोग्राम है तो घरे है अपना क्लास जाते हैं। 365 दिन में 30-40 को प्रोग्राम हमको मिलता है बस। समाज बहुत घृणा करता है, इसका समाज में कोई अहमियत नहीं है। शुरू बार जब हम प्रोग्राम किए थे तो उसमें 75 रुपया फर्स्ट पीरियड में मिला था। दूसरा बार किए तो पढ़ने के लिए मुझे पैसा थोड़ा बढ़ने लगा। और जो वो सेक्स के बारे में है तो पहले ही वहाँ कहा दिया जाता है कि आप इस व्यवहार का हैं, यस या नो में जवाब देता है वही पर कि हाँ हम हैं तो ठीक है, आप नहीं है तो
दुख यही कहा है कि मुझे पुराण नहीं मिलता है। धीरे धीरे मेरी गरीबी है जो और बढ़ रही है। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। अभी भी परिवार कहते हैं कि पढ़ो, लोगों तो जॉब हो जाएगा तो ठीक रहेगा। Yeah, sorry. Yeah, so this was like a small clip from Londa dance, Londa Nach, and hope you are able to see it. Okay, so yeah, so that is the point that I'm trying to bring it here. So is it about is it about some kinds of erotic elements? Is it about some kinds of caste connection? Is it something related to corporeality, the bodily discourses that is defining our discourses of aesthetics in folk performances? Or is it also, one can say that it is about the skills, but again you can see the skills in London Nach. One they have very very skillful dance. They have full repertoire in which one can count the steps, one can think about the rhythm, one can talk about the rigor, because many times the classical dance discourse will talk about that we have the rigor and you don't have the rigor, but again you can also talk about the rigor and many other things. But again, I don't think that suffice, that whole argument about that why folk performances should be seen in the lower light or in the lower way. Yeah, so other category that I bring to discuss about this whole connection is viscerality. So you have many times what happens, and I think Priyanka already pointed out this thing that how when you are talking about some performance, then it has to be have some standard. Unless you are not able to find some structure, unless you are not able to find some standard, then you are not able to generate the aesthetic discourse. So because you are not able to produce the aesthetic discourse, you are cut them out from the aesthetics itself. And that becomes another reasons for the scholars, many scholars, to discuss folk performances in the category of aesthetics. So the challenge is that how we are going to discuss these performances under the aesthetic category. And another category that I have discussed is called performativity. So I'm using a lot of category that also goes talk to some way to the community, but also talk to this, also informs the aesthetic choice. So why I am using the term performativity? Performativity में क्या होता है? You have interesting scholar James Scott. So, and James Scott का कहना ये है, उनका ये argument था, and he was trying to study societies in Indonesia and Malaysia, and his argument was कि not necessarily सारे जो सोसाइटी के लोग हैं, सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो एक ही तरह से रेजिस्टेंस करते हैं. हो सकता है जो डोमिनेंट लोग हैं, जिसके पास पोजीशन है थोड़ा सा अगर ये है, तो हो सकता है कि वो ओपनली कन्फ्रंट चीजों को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनलाइज है. अगर वीमेन के बारे में बात करें, लोअर कास्ट कम्युनिटीज के बारे में बात करें, तो उनकी स्थिति इतनी खराब है कि हो सकता है दे मे नॉट गो फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. उनके लिए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और उनको बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि रोजी रोजगार का मामला है, बहुत तरह का मामला है. तो उसमें वो टर्म तो उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि वो दो तरह का स्क्रिप्ट यूज करते हैं. एक बोलते हैं वो पब्लिक ट्रांसक्रिप्ट और हिडन ट्रांसक्रिप्ट. पब्लिक स्क्रिप्ट, एक पब्लिक स्क्रिप्ट, तो जब वो उनसे जेम्स स्कॉट जब बात करने जाते हैं, तो जब उनसे जो किसान है जो बात करता है, जो बड़े बड़े किसान है या ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, जब बात करता है तो बताते हैं आप तो बहुत महान हैं, यू आर सो ग्रेट, यू आर सो जेनरस, यू गिव अस सच ए गुड सैलरी, आप तो हम लोग का इतना देखभाल करते हैं. लेकिन जैसे ही हो जाता है, वो गॉसिप के लैंग्वेज पे आते हैं, उन्हीं लोगों को गाली देना शुरू करते हैं. And this happens in our own society. कि अगर if you have either you are working in corporate sectors, university system, everywhere. So if you have power, you can confront. If you don't have power, what you will do? That no, you are great. I really love, respect you and everything. But again, the person is out of the sight. You will come to the real thing, real politics. That how you either hate that person or how gossip itself becomes the site of politics many times. Very and generally that is why gossip also gets demonized many times. That okay, gossip does not have political, but it becomes a very interesting site to find out the politics. So in which what happens? So I was working on one performance practices called Resma Chu Harmal. Resma Chu Harmal में क्या होता है कि it's a love story again with upper caste. The boy is coming from lower caste, Dalit, and that that girl is Resma is coming from upper caste. And in the story you have several interpretation of that stories, in which so many times this story gets really violent in parts of Bihar. And to that extent, you have example of 1997, when the person was playing this role of Chu Harmal, that boy, then he got shot on the stage.
And that shows the hatred of the community, like, no, and the way this narrative becomes so crucial for those communities in that manner. So in that community, but again, if you go to talk to these communities many times, and they will say that, nahi, wo to aisa nahi hai. So what you will find interesting is that like a whole contradiction that will come up. And what is this contradiction? So when they worship this Chuharmal deity many times in household, then you have very grotesque idea of the Chuharmal. Chuharmal maybe without neck. And this also comes with a lot of the songs that women will sing. But when they play, like bring the same Chuharmal for different other kinds of community, then they make it beautified Chuharmal. Chuharmal becomes beautiful. And they will say that Chuharmal is a Ram avatar, Chuharmal Ram ke avatar. So, and the same time, it is happening in the same time, almost in the same village, where like two different sites are generating two different kinds of image of Chuharmal. The question one can ask that why the same community in a same historical time are generating two different kinds of images with the same, maybe same political consciousness. The answer could be that maybe that image is working more powerfully there in the household, where grotesque image is able to create some kinds of bond among the community, bond among the caste community, bond among the space. But when it comes to resist something, then they are creating beautified image. And we have evidence to suggest that how beautified image of Chuharmal was creating more resistance than grotesque image of Chuharmal. But again, the inherent contradiction that we find that why communities are playing that safe in a two different kinds of contexts. And there are many other examples that we can take. But do we have time, more time, or shall I stop it here? Thank you, sir. It was really very wonderful session, and you can also see so many, compliments in the chat box. People were enjoying this one. There are just a few things which, like I'll take the questions also, but one thing which, I was feeling that you talked about that, when we convert the folk into classical, then there are, some harms कि हम erase कर देते हैं काफी चीजों को and all. तो like what do you think? फिर ये चीज सही है कि नहीं? But I think कि अगर आपने उसको classical में किया convert, तो at least you can save that particular art form. So, like, is it right or wrong to convert that? Like, I will say, for me, it's absolutely wrong. I will say it's wrong. Why we need classical? And that is two, three community. One, that if you're talking about folk performances, local Sanskriti, it has its local basis. It has its local connection. Ecological connection is very, very significant for me. And also it has created its own repository for many years. It has its memory encoded in those performances. And when you are trying to make it classical, then inherently you are going to give up this narrative. You are going to do something to this narrative, cut these narratives out, and you are trying to fit it into somewhere else. So it becomes some kinds of imposition. It will be like a case of cultural appropriation in that way. So is it not about one is trying to say that I have wrote a scroll piece where I'm saying that how classical need to be declared to an extent dead, to discuss about classical, discuss about modes of aesthetics itself. But the point I'm trying to make, so it's not about classical and folk. Both have their different standards, both have their different values, both have their different benchmarks, and therefore they need to be developed from their own perspectives, from their own vantages point. Why there is no point of making classical into folk, and there is no point of making folk into classical, because both will bring some kinds of erasure or some kinds of, I think, underneath will create some kinds of very cultural, the question of it will bring the question of cultural appropriation or cultural domination for that matter. Yeah, truly said, sir. Both are two different things, and they should live and exist in their own different forms. So completely agree with you. I just, this thought came to my mind, if in one way we can save, then can that be justified? But as you said, that killing the soul of one to save it in another form, I think that is not that aesthetic, and that is not that right. Sir, what will you say that what are the potential consequences of ignoring or marginalizing folk culture in Indian cultural landscape? Yeah, so we can think about different kinds of major implications. And the first implication that I will see is that the community are losing their own memory. Every folk performances
have their own language, their own ritual. And if you are thinking about ritual, then they have their own cosmos. Every community have their own cosmos. Many times, it also should not get romanticized, because this whole cosmos idea comes from the caste community society. So also it has its own complexities. But what I'm trying to say here is that they have their idea of the memory, they have their repository, they have their kinds of belief, 100 years of the practices, and that is one part. So how, if you're trying to erase or make some kinds of formulation for that, then we are going to lose those history, because how you're going to write history for that matter if you don't have the memory? If memory get erased, then we cannot talk about the question of history. It will be baseless to talk about history when you are not talking about memory. So that is one part. Same in many parts there was a whole discourse that if you're going to displace the communities, then of course you're going to compensate them with another parts of the land. You can give them another sorts of land, they can get some land or they can get some jobs and things. But I don't think that can compensate your cultural memory, that can compensate your cultural ecology, your understanding with ecology that way. So you have this whole examples, when this tsunami came few years back, not now almost 20 years back, then you had all the Adivasi communities, they could read the color of the water. Many of the Adivasi communities, they already shifted by the time tsunami came, because they could read that plants are changing its so these leaves are changing its color. They were able to see that water is doing something, animals are behaving in a different way. So these readings, they already shifted. So they had a very different kinds of reading. So how this also suggests that those community have very that kinds of relationship with that land, with that ecology. And if you're trying to displace, then you cannot just compensate communities in terms of economy or land. That just giving land in place of land is not the answer that we can perhaps provide. And therefore this connection goes. But so one is memory, another is the question of ecology. And same many times you have community who comes from so you have many examples of community who are coming from Uttarakhand, and then for many months they don't understand the sense of sound in Delhi, because Delhi becomes completely so they're trying to understand कि okay ये क्या sound है, aeroplane का sound है या auto का sound है या क्या sound है. So it takes so you are getting displaced from your own soundscape, from your own ways of thinking and things. So I think that different layers one can talk about, and that is way. And I think because now we are also witnessing so much migration, and therefore I also think that folklore, folk performance becomes a site of a repository which we need to really take care of and really need to defend with the kinds of cultural marginalization that it is going through. Very truly said, sir. If you are not going to save this dying culture, if you're not going to document this now, it's not only going to be the cultural loss, but also we are going to lose that very rich knowledge system also, which is ingrained into the folk culture, as you talked about. Because I think it was yesterday only we also had a session when this ecological and the folk traditions, how they are immersed with each other, that we have talked, and how helpful this knowledge which is ingrained into folk culture that can be for us. So very truly said. Sir, one more question. I think there are so many questions in the chat box also. What do you suggest as academicians and as being a part of educational institution? What can be done from our part to save the folk culture? I think this one is this refresher course is also conducted for this purpose only, so that people come to know about this rich hereditary of ours which we have, and how useful that is beyond how it moves beyond entertainment only, and it should be saved. But what else can be done from our part, as academicians and education institutions? What can we do? So I'll make a provocative remark here. So we had a professor called Siva Prakash, and he used to say that how the cultural department has ruined our culture. Let me put another way around. So how the understanding, I think our own cultural department, our department don't have understanding, the sensible understanding to how to deal with the materials. Many times they are just working through some kinds of bureaucracy. Unless you don't have that sensibility, that sense of touch, the sense of some kinds of dialogue, you cannot leave this idea of the saving, but you cannot have a dialogue with this community. I will give you one example. So a few years back, I went to IGNCA, where the festival was happening. And then an inherent idea that if you are a folk performers, then you will get lowly paid in compared to classical dancer, or in compared to more popular dancers or singers. Second thing, that the way they get treated.
So what was happening that you have some folk performers, they came from singers, they came from parts of the Jharkhand and Bihar, I think Jharkhand largely, and they were, so whenever they will see this officer, they will start singing or dancing. वो चले जाते थे तो चुप हो जाते थे. So an idea was, and also that the way officer was behaving, कि हम आपको पैसा दिए हैं तो आप गाते रहो, नहीं तो डांस करते रहो. So if you have this kinds of understanding about this culture that is very instrumental, then I cannot think that how you are going. So I think we need to have developed a more sensible approach to culture. Also, the I don't think our students have exposure to their own tradition, to their own culture, to their own kinds of worldview they come from many times. So I think the role of the ancestors, the role of the guardians, the role of that, the intra-generational dialogue becomes very, very crucial. That how even 3 generations the things have shifted, and how those even if they're going to become sensible towards some idea of the culture and things. And I also think that many times this idea of the saving culture will not save culture. Put in a very I will put in a quite blunt way. So for example, in Telangana, folk has come in a very, very wonderful way, in a very powerful, as a powerful force. And folk came with the Telangana movement, folk came with the social movement. So unless social movement is not playing that role with the culture, not playing the active role in the culture, I think perhaps the museum, the art department, my department, your department cannot play the major role unless it is not going at that popular level. But how it should become the part of some kinds of popular kinds of movement, and that is the way perhaps folk can come back. And it is coming back. The interesting part is that it is coming back. Either you are going to many parts of India, now people are stopped listening all the Bollywood songs. They are listening their own songs. They are listening their own local songs. They are all listening either Ragani, Bhojpuri, and all the kinds of songs. And that also suggests that how they are making comeback, a strong comeback. And that I'm very, very hopeful about coming back of the folk in that for our future. Truly said, sir. I think it's only the sensitivity towards this culture of ours, and as you said that, if there are going to be these generational discourses going to take place, I think we'll feel proud of this, this culture of ours. As you said that, yes, it is coming back. On a very informal note, I'll say, आजकल वेंकटेश्वरा में चाहे फेस्ट चल रहा हो या आरएसडी में फेस्ट चल रहा हो, गाने बजते हैं राजस्थानी और हरियाणवी और बिहारी भोजपुरी. So yes, it is coming back because now people, this new generation that is also showing interest. They are, really getting fascinated to know about this and all. Yeah. Amit, DS Negi ji kuch कहना चाह रहे हैं. If you can unmute him, that would be great. There are other questions I think I can see. Yeah, sir. I'm also going for them only. First is full of so many. Or if you can just read it out. Yeah, if you can just read it out. So yeah, sir. I'll do that. सर नेगी जी का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि प्लीज also throw some light on the importance of folk proverbs in carrying forward the cultural inheritance to the next generation. Proverbs का क्या रोल है? वो तो है ही, but either if you are thinking about folk proverbs या जो भी मुहावरे उस लेवल पे जो भी कुछ माने उक्तियां की बात कीजिए या इस तरह की बात कीजिए, तो कैरी है ना, they used to carry that local nuances of either many things, local contradiction about the community. So many times if you're talking about the proverbs was very gender centric, proverbs were also very caste centric, proverbs were also many times emancipatory. So that also shows that how, so of course they play a huge important role, but I think to discuss folk proverbs we need to have another session. I don't think I can really do justice in this 5 minutes or 10 minutes more. True, sir. It's a vast field when you start talking about. Yeah, of course it's a special topic that one need to pay attention to. Yes, very true. नेगी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अनम्यूट हो सकते हैं. यस मैम, यस, मैं इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन चाह रहा था. अच्छा, ओके सर. हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे गढ़वाल में जो गढ़वाली डायलेक्ट है, नई पीढ़ी धीरे धीरे कॉन्वेंट एजुकेटेड हो रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रही है. नई पीढ़ी को कुछ पता लग नहीं रहा है कि भाई हमारे पूरी कल्चर में कितने ज्यादा डायलेक्ट्स हर लेवल पे अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बोली जाती है, और उसमें एक बड़ा संदेश होता था, चाहे वो नैतिक शिक्षा हो, चाहे कृषि से संबंधित जानकारियां हो, चाहे हिस्टोरिकल पार्ट हो, बहुत सारी चीजें होती थी. लेकिन मैं कुछ समय से उस तरह के डायलेक्ट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, उन पर छोटे छोटे वीडियो भी बनाता हूँ ताकि नई जनरेशन तक जाए. लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है अभी
कुछ जैसा आपने कहा कि कास्ट बेस्ड प्रोवर्ब्स हैं, जिसमें बहुत बड़ी चीजें भी हैं, फीमेल पे सेंट्रिक ज्यादा हैं उन पे, वो तो क्या इनको हमको अपने कलेक्शन में लेना जरूरी है या इनसे बच के रहना चाहिए जो कास्ट बेस्ड हैं? और कहीं अगर हम इनको नहीं लेते अपने कलेक्शन में, तो क्या जो इतनी बड़ा, क्योंकि 30 से 35% तो सिर्फ कास्ट बेस्ड ही मुझे लगता है ज्यादातर जो है प्रोवर्ब्स हैं, और ज्यादातर उनमें से भी जो टोटल प्रोवर्ब्स हैं उनमें से भी जितने हमने सुने हैं या जितने हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग बुजुर्ग लोगों से, उनमें से फीमेल पे कमेंट के तौर पे ज्यादा है, तो क्या वो चीजें भी कलेक्ट होनी चाहिए या फिर उनसे बचा जाना चाहिए, कि कितना सही होगा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं तो कहूंगा, आई थिंक कोई भी रिसर्चर है यहाँ पे तो मान के चलेंगे कि सब कुछ कलेक्ट होना चाहिए जो पार्ट ऑफ कलेक्शन। क्योंकि हो सकता है उसका कोई सोशोलॉजिकल एनालिसिस करे, कोई हो सकता है पॉलिटिकल एनालिसिस करे, फेमिनिस्ट एनालिसिस हो उसका। एंड दैट ऑल्सो बिकॉज आप बच के तो सिर्फ अपना बचा रहे हैं ना, हो सकता है हम बच के अपना फेस बचा रहे हैं, लेकिन जो सोसाइटी में है उसको तो आपको लाना, एक इंटायरिटी में उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई लाइक नो आई डोंट सी कि फोक है जो बहुत ही, जो पूरा जो एक वेलराइज्ड आइडिया है, रोमांटिसाइज आइडिया है कि हमारा फोक बहुत ही सुंदर है। नहीं, आपके फोक सुंदर हैं, हमारा फोक भी सुंदर है, बट पॉइंट है उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी है। उस दिक्कतें को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो परहैप्स वी कैन नॉट टेक दिस चैलेंज, एंड परहैप्स आल्सो वी कैन नॉट लाइक नो। तो अगर मान लिया उसको हमें करना है, उस पर काम करना है, और इस तरह के हो सकता है कि हम बहुत तरह के ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हो सकता है जेंडर न्यूट्रल हो उस लेवल पे, तो हम उसको हो सकता है कि फ्यूचर में ज्यादा यूज करें, स्कूल एजुकेशन में उसको ला सकते हैं। तो कलेक्शन के लेवल पे और उसको इस पे लाने पे तो मुझे लगता है कि सबको लाना जरूरी होता है और सबको लाना चाहिए। और दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपका, जो ये है, चूंकि आप बाहर से आते हैं, तो हम लोग कुछ कर रहे थे, गढ़वाली सॉन्ग पे काम कर रहे थे। अब देखेंगे कि एक स्टीरियोटाइप बन गया है। तो अगर भोजपुरी गाने को लेंगे तो उसमें नेसेसरली वो इरोटिक वल्गर सॉन्ग रहेगा ही। उसी तरह से अगर पहाड़ के गढ़वाली सॉन्ग लेंगे तो दो पहाड़ का फोटो, एक रिवर का फोटो रहेगा ही। उसके बिना पर लगता है कि गढ़वाली सॉन्ग ही पूरा नहीं होता है। उसी तरह से पंजाबी सॉन्ग लेंगे तो उसमें दो ट्रैक्टर और दो खेत दिखेगा ही। तो ये जो पूरा स्टीरियोटाइप भी बनता है, उसमें एक कम्युनिटी का स्टीरियोटाइप बनता है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप ऑफ लाइक पंजाब, तो इससे जट स्टीरियोटाइप, जट कम्युनिटी का स्टीरियोटाइप है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गढ़वाली स्टीरियोटाइप, देन गढ़वाली राजपूत, राजपूत का स्टीरियोटाइप है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इरोटी का स्टीरियोटाइप, तो अगेन मेल शोविनिज्म का स्टीरियोटाइप है। तो ये भी हमें देखना जरूरी है कि उसको। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मुझे जो काम लगता है वो तेलंगाना में लगता है, कि तेलंगाना में जो काम हो रहा है और जो झारखंड में काम हो रहा है। झारखंड में एक कोशिश भी है, क्योंकि वहाँ पे इंडिजिनिटी का डिस्कोर्स आया है, एक प्राकृतिक को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है उस डिस्कोर्स में। उसके कारण क्या हुआ है कि उस डिस्कोर्स में, आदिवासी के डिस्कोर्स में, एक लेवल पे कोशिश भी है कि उस गाने को, उस फेस्टिवल को, उस कल्चर से फिर से रिकनेक्ट किया जाए या ज्यादा ही कनेक्ट किया जाए। तो वो जो एक लेवल पे जो वहां पे जो चीजें हो रही है, या उसको दूसरे वे में भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सब पॉसिबिलिटी भी खुल रही है। लेकिन मुझे तो लगता है कलेक्शन के लेवल पे तो वन कैन नॉट से दैट कि बिकॉज वहाँ पे गाली है या ये है तो सिर्फ हम बढ़िया कलेक्शन करेंगे और जो खराब होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी एकेडमिक एटीट्यूड और स्कॉलरली एटीट्यूड फॉर अस। दैट वुड बी लाइक कोई एक प्रमोशन का एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन स्कॉलरली एटीट्यूड तो वो नहीं होगा। वेरी वेल सेड सर। सर अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक चैट बॉक्स भरे जा रहे हैं, बहुत ही बौद्धिक व्याख्यान रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक, very informative and thought-provoking session, and that really tells that how insightful your whole session was. And टाइम की मजबूरी है तो इसलिए अब सेशन को विराम देते हैं। एंड इसके लिए मैं I'll take this opportunity to convey my formal vote of thanks to each and everyone who made this session successful. So first of all, sir, really thank you, and we are really grateful that you came here, accepted our proposal, and delivered this very insightful talk where you talked about the folk culture and classical culture. You also talked about that how they are different. Also talked about this journey from folk to culture, but how it has its own dangers associated with this one. You also talked about this question of land and agriculture, which is missing. Also, brought into light the ecological concern, which is also ingrained into folk culture. We also talked about the dangers associated with, this loss of this culture and tradition of ours. So really thank you. And I am very sure that each and every participant has, learned something and is going to, he or she is going to take something with him or her and going to work towards this. You surely have sensitized us towards the importance of folk culture. And I think this session of yours is really going to be a very
very important step into this, whole muhim of saving our folk culture. I'll also extend my thanks to our principal, Sir Professor Gyantosh Kumar Jha, who is always with us, in taking any kind of new venture like this, where he sees that, okay, how the culture can be saved, how the institutions, they can go beyond, these walls of the campus and all. I'll also extend my gratitude to our IQAC coordinator, Professor Vinita Thuli, who has been behind this whole idea from the very beginning. And she structured this in such a way that we are able to cover various facets of folk culture, that we talked about constitution and folk culture, we talked about ecology, we talked about mental well-being, we talked about the theatrical aspects, we talked about the artist perspective like Londa Nach and all. Yesterday only we had one artist, Rakesh Kumarji, who is also a performer. So she is the one who thought in such a way that we can touch almost all the aspects of folk culture. So really thank you so much, Anita ma'am, and your team, Professor Anjali ma'am. And obviously, I'll give a big thanks to my technical team member, my supporter, my friend, my colleague, Amit, who has been with us, in the smooth functioning of this program. And last, a big thanks to all the wonderful participants. It's your active participation which is making all these sessions wonderful, engaging. The way you raise questions, the way you give your observations, and the way you you become a part of this overall conversation, that really makes all these sessions fascinating, wonderful, engaging. And I think we can learn more and more with this participation of yours. So really thank you so much for being such wonderful audience. And thank you everyone. And now with this we come to the end of this day of refresher course, and hope to see you all tomorrow 2 o'clock, and we'll be starting a new day. Thank you once again. Thank you for coming, enlightening us. Yeah, thank you everyone for giving me, of course, your team to giving me this opportunity. And thank you so much everyone. Hope I was able to make some sense, but let us keep having the dialogue around the folk performance, our local cultural context and sensibility. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you everyone.